चलिए दोस्तों, मिलते हैं डगलस एडम्स से और देखते हैं इन्होंने लिखे हुए बुक्स, जिसमें से हमें आज देखना है कुकीज। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो देखिए। विश यू वर हियर द लॉन्ग डार्क टी टाइम ऑफ द सोल, एंड सबसे फेमस बनाने वाला इनका बुक है डोंट पैनिक। ये ह्यूमरिस्ट है, सैटरिस्ट है, ये स्क्रीन राइटर भी है। द रेस्टोरेंट एट द एंड, लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। डगलस एडम्स इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। द हिचकरीज गाइड टू द गैलेक्सी। चलिए देखते हैं। This actually did happen to a real person, and the real person was me. I had gone to catch a train. This was April 1976 in Cambridge, UK. I was a bit early for the train. I'd gotten the time of the train wrong. I went to get myself a newspaper to do the crossword, and a cup of coffee and a packet of cookies. I went and sat at a table. I want you to picture the scene. It's very important that you get this very clear in your mind. Here's the table, newspaper, cup of coffee, and packet of cookies. There's a guy sitting opposite me, perfectly ordinary looking guy, wearing a business suit, carrying a briefcase. It didn't look like he was going to do anything weird. What he did was this. He suddenly leaned across, picked up the packet of cookies, tore it open, took one out, and ate it. Now this, I have to say, is the sort of thing the British are very bad at dealing with. There's nothing in our background, upbringing, or education that teaches you how to deal with someone who in broad daylight has just stolen your cookies. But in the end, I did what any red-blooded Englishman would do. I ignored it. And I stared at the newspaper, took a sip of coffee, tried to do a clue in the newspaper, couldn't do anything, and thought, what am I going to do? In the end, I thought nothing for it. I'll just have to go for it. And I tried very hard not to notice the fact that the packet was already mysteriously opened. I took out a cookie for myself. I thought that settled him. But it hadn't, because a moment or two later, he did it again. He took another cookie. Having not mentioned it the first time, it was somehow even harder to raise the subject the second time round. Excuse me, I couldn't help but notice. I mean, it doesn't really work, does it? We went through the whole packet like this. When I say the whole packet, I mean there were only about 8 cookies, but it felt like a lifetime. He took one, I took one, he took one, I took one. Finally, when we got to the end, he stood up and walked away. Well, we exchanged meaningful looks. Then he walked away, and I breathed a sigh of relief and sat back. A moment or two later, the train was coming in, so I tossed back the rest of my coffee, stood up, picked up the newspaper, and underneath the newspaper were my cookies. The thing I like particularly about this story is the sensation that somewhere in England there has been wandering around for the last quarter century a perfectly ordinary guy who's had the same exact story, only he doesn't have the punchline. बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है ना। तो हिंदी में आप सुनिए, पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किया है तो दूसरों को भी बताइए। चलिए देखते हैं डगलस एडम का कुकीज। ये शॉर्ट एक स्टोरी है। मैं हमेशा की तरह जा रहा था और मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी थी। चलिए एक रियल स्टोरी एक रियल पर्सन के हाथ से मुंह से सुनिए। उस दिन मैं ट्रेन के लिए अप्रैल 1976 में कैम्ब्रिज यूके से निकल रहा था। मैं बहुत ही जल्दी ट्रेन के लिए आ चुका था और मुझे जो टाइम दिया गया था वो बहुत ही जल्दी का था। अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए आ गया हूँ, टाइम है। तो मैंने सोचा मैं न्यूज़पेपर ले लेता हूँ और उसमें से जो क्रॉस वर्ड्स होते हैं वो मैं सॉल्व करूँगा, उसके साथ कॉफ़ी भी पीऊँगा और कुकीज़ भी खाऊँगा। मैंने दुकान से सारी चीज़ें ले ली और एक टेबल पे बैठ गया। सब लेने के बाद
इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। मैं टेबल पे बैठ गया हूँ, मेरे सामने पेपर है, कॉफी है और मेरा कुकीज वाला पॉकेट भी है, लेकिन मेरे सीधा सामने एक सर्वसामान्य बोल रहा हूँ मैं, एक लड़का बैठा हुआ है। वो यंग है, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति होता है वैसे ही वो भी था। और वो शायद से बिजनेसमैन होगा, क्योंकि उसके हाथ में एक सूटकेस था, जो ब्रीफ केस, और वो पकड़ के था। उसने वो पकड़ के मतलब नीचे रखा था, और वो ऐसे अजीब सी चीज़ें करेगा ऐसे मुझे नहीं लगा था। अब देखिए उसने अजीब सी चीज़ मेरे साथ क्या कर दी थी, ये देखने के बाद आपको भी पता चलेगा। उसने मेरा कुकीज़ का जो पॉकेट था उसे फोड़ के एक कुकीज़ उसमें से निकाली और वो खाने लगा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। यार, ये ब्रिटिश लोगों को सच्ची में ना दूसरों की चीज़ें लेने की बहुत गंदी आदत है। न कोई जान पहचान, और मेरा कुकीज़ का पॉकेट इसने मुझे बिना पूछे तोड़ा भी, फोड़ उसमें से एक कुकीज़ निकाली भी, और देखिए कैसे खा रहा है। शी, इसको तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पढ़ा लिखा लग रहा है, लेकिन जब खाने का टाइम आ जाता है ना, तो इन ब्रिटिश लोगों की ना सच्ची में अक्ल लेना भैंस की जैसे हो जाती है। उफ, ये रेड ब्लडेड इंग्लिश मैन ऐसे करेगा, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। मैंने अपना पेपर उठा लिया और मैं क्रॉस वर्ड्स अच्छे से देखने लगा और मन ही मन में सोचने लगा। मैंने एक सिप मेरे कॉपी का ले लिया था, फिर भी मेरा मन अब मैं क्रॉस वर्ड्स में न्यूज़पेपर में डालने की कोशिश कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था, इसे कुछ बोलूं, इसे कुछ पूछूं, लेकिन कैसे लगेगा? वो अजीब नहीं लगेगा कि मेरी पॉकेट में से कुकीज़ मत खाओ? तो मैंने भी फिर मेरे ही पॉकेट में से एक कुकीज़ मैंने भी उठाई और मैंने भी खाने के लिए शुरुआत कर दी थी। मन ही मन में लग रहा था कि इसको मैं अब बोलूं, बताऊं कि ये मेरा पॉकेट है भैया, और आप मेरे इसमें से कैसे उठा के खा सकते हैं। एक मैंने उठाया तो वो जो ब्रिटिश मैन, इंग्लिश मैन मेरे सामने बैठा था, वो उसके चेहरे से ऐसे अजीब से कुछ भी नहीं लग रहा था, वो कुछ ही रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने भी तुरंत अपना हाथ उठाया और एक कुकीज़ उसने भी उठा ली। मैं देखता ही रह गया। हम दोनों कुकीज़ खा रहे थे। कुकीज़ बड़ी ही टेस्टी थी। मैं बीच बीच में मेरे कॉफ़ी का जो सिप था वो भी ले रहा था, और मन ही मन में मेरे साथ जो अजीब घटना घट रही थी उसके बारे में मैं सोच रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसे बताओ कि एक्सक्यूज़ मी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा पॉकेट है और ये मेरी कुकीज़ है, इसके लिए मैंने पैसा खर्च किया है। फिर मैंने दूसरी वाली कुकीज़ उठाई, फिर उसने भी उठाई। ऐसे ही चालू था। और आपको पता है, एक कुकीज़ के पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 कुकीज़ आती है। उसमें से 3 तो ऑलरेडी वो ले ही चुका था और 3 मैं ले चुका था। फिर उसने हाथ बढ़ाया, मैंने भी हाथ बढ़ाया। ऐसे करते करते अब कुकीज़ के पॉकेट में एक ही कुकीज़ बाकी थी, और वो आदमी ने देखा कि एक ही कुकीज़ बाकी है, वो चलता बन गया। जैसे ही वो जाने लगा, जाने के टाइम में उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा, लेकिन कोई हाव भाव नहीं थे। अब मैं रिलीफ हो गया था कि एटलीस्ट जो एक बची हुई है अब ये मेरी है, ये पॉकेट मेरा ही है, ऐसे मुझे लगा। तभी ट्रेन का आवाज़ आया और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए मेरा सामान, मेरा जो न्यूज़पेपर था, मेरा जो कप था कॉफ़ी का, वो बचा हुआ कॉफ़ी मैं पीने लगा। और जैसे ही मैं उठा, मैंने न्यूज़पेपर के पन्नों को उठाया तो मेरा कुकीज़ वहाँ पे मेरे कुकीज़ का पॉकेट वहाँ पे पड़ा था। इसका मतलब वो मेरे पॉकेट में से नहीं खा रहा था, मैं उसके कुकीज़ के पॉकेट में से खा रहा था। मैं ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठने के बाद मैं मन में सोच रहा था कि जो स्टोरी मैंने अब आप लोगों को बताई है,
यही सेम स्टोरी उसके साथ भी घटी है तो वो भी ऐसे ही बताता होगा, लेकिन जो मैंने पंचेस यूज़ किए हैं वैसे पंचेस इतना बुरा नज़रिया उसका नहीं था। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा अपने आप को फील करता हूँ। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लोगों को बताइए और देखते रहिए। धन्यवाद।